Hi guys, welcome back to Rinky's Angelican. We are doing weekly videos for the week starting from 15 to 21st of April. Let's see how this week looks like for you guys. I usually pull out two tarot cards and one angel message. That is the pattern that I'm going to follow for this week also. So I really hope you've been watching the previous 2 weeks videos. We have a lot of content coming this time, and I promise I'm not running away anywhere this time. So yeah, you will see weekly videos every week on the channel on Sunday 10 a.m. So subscribe to the channel if you haven't already. Now let's begin. Aries, I am pulling out two tarot cards and one angel message. Let's see how this week looks like for you guys. Aries, the first card here is only telling us you need to connect a little more to spirituality. Aries, you need to really take out time this week and dedicate more energy, more kind of vibrations with the universe, with God. I feel there is some light that you would be shown. I feel it's so important for you to connect to your gut, to connect to your inner self. You will be shown a path. All the obstacles that you've been facing, you will see things coming to a closure, things coming and making a lot of sense. So it's just telling us you need to dedicate more time and energy this particular week to God, to universe, to your own self, so that you find light to whatever you are looking forward to. This card is also telling us that emotionally there are a lot of way outs that I see you can work around. You can just go and talk to somebody at this point and feel so much light, so much ease in your energies, because it just feels you need that heart to heart conversation with someone. I feel you've been holding on to this energy since a very long time, but this is the time, trust me, God wants you to hear. Just talk your heart out. If there is any feeling of love that you want to express to your loved one, I feel this week is a great time, great energy. Just go speak your heart out. Tell the person how you feel about them, and the result most probably looks very positive. Angels are telling you it's about sexuality. So yes, it also tells us that you are going to have a very good time, very cozy time, very kind of energy looks really good with your loved one this particular week. So make sure you're dedicating that time to your partner also. If not, I feel it's time to understand and appreciate your own body at this point. Just feel good about it. Don't feel like a lot of hesitations, a lot of negativity. Don't body shame your own self, maybe, for that matter. It's all about taking care and feeling good in who you are. So it is literally what the universe wants you to know this particular week. I really hope it helps, brings you light, positivity, everything that you are looking forward to. Have a great week ahead. Taurus, we are pulling out two tarot cards and one angel message. देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स यूनिवर्स क्या चाहते हैं. आई फील टॉरस ये हफ्ते ना बहुत बहुत ज्यादा एंग्शियस फील कर रहे हो. आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन्ड, इतनी डाउन फील कर रही है. इट इज बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. वन इज देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन यू. आपके ऊपर इतना ज्यादा बर्डन है, इतना ज्यादा प्रेशर है. कोई कहते हैं ना कि सर पे बैठा हुआ है 24 घंटे डंडा लेके, आपको वैसा फील हो रहा है. आपकी एनर्जीज, आपकी वाइब्रेशंस लग रही है वैसी. सो आई फील इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू दिस वीक जस्ट टू कट ऑफ. मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक लीजिए. जिसकी एनर्जी, जिसकी वाइब्रेशन आपको बहुत ज्यादा नीचा दिखा रही है, उस पर्सन से थोड़ी ब्रेक लें ये पर्टिकुलर हफ्ते. टॉरस, मुझे ऐसे लग रहा है वो ही चीज आधा तो आपका स्ट्रेस खत्म कर देगी. सेकेंड, देयर इज अ लॉट ऑफ ईविल आई, देयर इज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी ऑन यू. आपके आसपास के अनफॉर्चुनेटली जो आपके बहुत क्लोज्ड वंस हैं, वो लोग ही आप पर बहुत ज्यादा बुरी नजर मार रहे हैं. वो लोग ही आपकी एनर्जी, आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा जेलस फील कर रहे हैं इस वक्त. एंड विच इज वाई आप बोल रहे हो कि यार सब सही होते होते कैसे चीजें खराब हो सकती है, सब अच्छा होते होते कैसे नेगेटिव एनर्जी आ सकती है. इट इज बिकॉज ऑफ ईविल आई एंड यू हैव टू एक्नॉलेज. सो ये हफ्ते दो चीज, एक तो थोड़ा सा डिटॉक्स करें, थोड़ा सा अपने आप को लोगों से कट ऑफ करें. थोड़ा सा जिनसे आप बहुत हैवी फील करें, बर्डन फील करें, उनसे थोड़ा सा स्पेस लीजिए. दिस रिलेशन इज सच कि आप कट ऑफ नहीं कर सकते हो, बट थोड़ी सी स्पेस है जो आपके लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है इस वक्त. बहुत ज्यादा लाउड होके अपनी अचीवमेंट्स, अपने गुड डेज इस हफ्ते पर्टिकुलरली किसी से शेयर मत करो, क्योंकि बहुत जल्दी नजर लग जा रही है, बहुत जल्दी नजर लग जा रही है. और वो नजर ऐसी भारी पड़ रही है कि यार बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी खराब हो सकती है. सो मेक श्योर कि you're giving yourself that space, that leisure, that time to connect with your own self. Very very important. Again, angels want you to move out of your comfort zone. मतलब ऐसे लग रहा है यार बहुत समय से ना एक अकड़ के बैठ गए हो कि ठीक है यार यही चीज है, दिस इज व्हाट इट इज एंड दिस इज हाउ आई एम कंफर्टेबल.
अनफॉर्चुनेटली आप अपनी खुद की ग्रोथ स्टॉप कर रहे हो. सो एंजल्स, यूनिवर्स डजंट वांट यू टू स्टॉप योर ओन ग्रोथ. दे वांट यू टू फोकस मोर ऑन योर अलाइनमेंट. दे वांट यू टू फोकस मोर ऑन हाउ पावरफुल यू आर. तो जितना ज्यादा आप अपना कंफर्ट शेक करेंगे, उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे, उतना ज्यादा आप तरक्की करेंगे. एंड दैट इज लिटरली व्हाट universe, gods, angel want from you. So yeah, that is literally about it. I hope this reading helps, brings you light, positivity, everything that you were looking forward to. Have a great week ahead. Let's move to Gemini. Gemini में आप लोगों के लिए 2 टैरो कार्ड्स और एक एंजल मैसेज पुल आउट कर रही हूँ. Gemini देखते हैं ये हफ्ते टैरो एंजल्स क्या चाहते हैं. Gemini, आपको अपने पास से निकलना पड़ेगा. जेमिनाई, ये हफ्ता आप बस सिर्फ रो रहे हो, बुरा फील कर रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो. क्यों? क्योंकि आपके पास्ट की कोई चीज आपके पास इस वक्त नहीं है. पास्ट को लेके बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है. पास्ट को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन फील कर रहे हो. मतलब क्या ना, आप प्रेजेंट के बारे में सोच ही नहीं रहे हो. जेमिनाई, आप सिर्फ और सिर्फ पास्ट में अटक गए हो और उसकी वजह से आप अपना जो प्रेजेंट मोमेंट है वो लिव ही नहीं कर रहे हो. आप समझो, इतनी ज्यादा ये चीजें, इतनी ज्यादा ये एनर्जी इस वक्त आप पर भारी पड़ रही है कि कोई बना बनाया काम भी बिगड़ रहा है. दिस इज अ कार्ड विच इज टेलिंग अस आप सब कुछ साथ लेके चलने की कोशिश करो. देयर आर टू मेनी थिंग्स दैट यू आर ट्राइंग टू डू, बट यूनिवर्स वांट्स यू टू नो दैट स्लो डाउन. जितना इस वक्त आप कर सकते हो यू आर डूइंग. डोंट ट्राई टू ओवरडू. डोंट ट्राई टू ओवरबर्डन योरसेल्फ विद अनकॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. मतलब ये आपका काम नहीं है, फिर भी आप कर रहे हो. इट्स ओके, इट्स फाइन, बट इतना ज्यादा भी करने की कोशिश मत करो कि आप पूरे जैसे खत्म हो जा रहे हो कहीं ना कहीं. यूनिवर्स वांट्स यू टू विजुअलाइज अ बेटर फ्यूचर. यूनिवर्स वांट्स यू टू विजुअलाइज अ बेटर एनर्जी, अ बेटर वाइब्रेशन. मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा टाइम ये हफ्ते प्लानिंग में डालो. थोड़ा सा ये हफ्ते टाइम विजुअलाइजेशन में डालो. ड्रीम करो, इमेजिन करो, बहुत अच्छे से प्लान करो कि exactly what you want in life and start rolling onto that direction. Very simple, very important message so that you kind of come out of this energy, this vibration at this point. So yeah, this is what we have for you. Gemini, I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. Let's move to Cancer. Cancer, I am pulling out 2 tarot cards for you and 1 angel message. Let's see how this particular week looks like for you guys. Cancer, the card, the energy that we have, it just feels यार बहुत मेहनत कर ली, बहुत effort डाल दिया, पर मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रही है. I feel there is such sadness in your energies right now कि यार ना कोई चीज काम नहीं कर रही है, कोई चीज सही नहीं जा रही है. सब एरिया ऑफ लाइफ में ऐसे लग रहा है यार मैं ब्लॉक्ड हूँ, अब मैं क्या करूँ. इतने ज्यादा डाउन एनर्जीज आई हुई है ना, इतनी ज्यादा लो एनर्जीज आई हुई है क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है यार कोई एरिया ऑफ लाइफ ठीक नहीं चल रही है, कोई एरिया ऑफ लाइफ काम नहीं कर पा रहे हो. सो समवेयर आई फील इट्स जस्ट टाइम to stop asking so many questions to God. In fact, मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा acknowledge कर लो, थोड़ा सा भगवान को बोलो I accept the situation as it is. जैसे आप acceptance पे आओगे तभी आप आगे focus कर पाओगे. अभी ना आप सिर्फ बोल रहे हो कि नहीं करना है, हार गए, give up. वो वाली energies आई हुई है. It obviously feels okay because आपने बहुत मेहनत करी है and you're not getting the desired results, which is why it just feels very down. It just feels extremely drained with all that you're doing. But मैं सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आपको देना चाहूंगी, प्लीज बिफोर यू स्लीप दिस होल वीक एक्सेप्टेंस पे आओ. जो भी सिचुएशन है उसको बोलो आई एक्सेप्ट यू. टेल गॉड आई एम एक्सेप्टिंग दिस सिचुएशन दैट आई एम इन टुडे. बी इट योर करियर, पर्सनल लाइफ, अगेन योर सेल्फ ग्रोथ, जो भी फैमिली लेके कोई इश्यूज है, बस उसको एक्सेप्ट करो. जैसे आप एक्सेप्ट करोगे मुझे ऐसा लग रहा है एक एनर्जी इतनी अच्छी ओपन हो रही है, चैनलाइज हो रही है कि आप बेटरमेंट पे काम करना स्टार्ट करोगे. Angel messages, feeling safe. Know that after everything that you're going through, angels want you to know that you're safe, you're fine. मतलब आपको ये affirmation तो मुझे लगता है पूरा हफ्ता यूज करना चाहिए. I'm safe, I'm secure somewhere. ये energies आपको एक थोड़ी सी calming energies देगी, आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस कराएगी. God is protecting you, angels are protecting you, and I don't think there's anything that you need to be worried of at this particular point in your life. So yeah, this is what we have for you, Cancer. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Leo. Leo, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स क्या गाइडेंस दे रहे हैं आपको. सबसे पहले तो ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है कि थोड़ा सा हार्ट ब्रेक, थोड़ी सी एंजाइटी, थोड़ा सा रिलेशनशिप इश्यूज कहीं ना कहीं दिख रहा है इस हफ्ते. तो मेक श्योर कीजिए कि आप कुछ ज्यादा आर्ग्यूमेंट्स मन मुटाव में ना पड़े अपने कोई क्लोज पर्सन से, बिकॉज इट जस्ट फील्स चीजें बहुत खराब हो सकती है. तो आपको कहीं ना कहीं एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक बाउंड्री ड्रॉ करनी चाहिए और ज्यादा
भड़कना नहीं है, आपको अपना अग्रेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है. आई फील दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू दिस पर्टिकुलर वीक. उसके साथ ऐसा लग रहा है, हाँ ठीक है, ये प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा ज़्यादा कनेक्ट करूंगी मैं ये कार्ड, कि अगर ऑफिस में या आपके बिजनेस में लोग आपकी आइडियाज या ओपिनियंस नहीं मान रहे ना, आपको गिव अप नहीं करना है. आई फील इट्स अ वीक टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू फील इज राइट, बिकॉज यही आपको अच्छा बना रहा है, यही आपको कैसे कह रहे हैं सबसे अलग बना रहा है. दैट यू हैव अ लीडर क्वालिटी एंड यू कांट बी लाइक अ फॉलोअर एट दिस पॉइंट, क्योंकि आप ये थॉट, ये आइडिया पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो. तो आप जो बिलीव करते हो, मुझे ऐसा लगता है प्लीज उस पर चले. और ये सेल्फ ग्रोथ और ये पर्सनल लाइफ पे भी हो सकता है. बट आई फील सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है, स्टिक टू व्हाट यू फील इज राइट, स्टैंड फॉर इट एंड ट्राई एंड मेक योर चॉइसेस एंड डिसीजंस बेसिस दिस बिलीव. समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रही हूँ, कि बहुत ध्यान से काम कीजिएगा. उसके बाद यूनिवर्स आपको बोल रहा है यार, जब आपको क्लैरिटी इतनी अच्छी है दिमाग में, आपके थॉट्स इतने अच्छे हैं दिमाग में, तो आपके अंदर डर क्यों आ रहा है इस वक्त. you need to move forward fearlessly. Angels, tarot, universe are only guiding you that you need to move forward fearlessly. You are very powerful, you are very capable. बस आगे बढ़ते जाओ, अब पीछे मुड़ के देखने का, हारने का, डरने का, घबराने का समय नहीं है. So I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. And we move to Virgo. Virgo में आप लोगों के लिए 2 tarot cards और एक angel message pull out कर. Let's see how this particular week looks like for you guys, Virgo. Virgo, it's all about new ideas. Virgo, it's all about new thoughts. मतलब दिमाग में इतनी सारी नई चीजें रिवॉल्व हो रही है, पर उसका कुछ किया जा रहा है, उसका आप कुछ कर रहे हो नहीं. बहुत क्लियर आंसर बताऊंगी, आप कुछ उस पर एफर्ट नहीं ले रहे हो. आई रियली वॉन्ट यू टू स्टार्ट टेकिंग मोर एफर्ट टूवर्ड्स योर थॉट्स, योर आइडियाज, बिकॉज इट्स अ टाइम एंड अ पीरियड ऑफ ग्रोथ. आप ये पीरियड को हाथ से नहीं जाने दे सकते हो, इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है. आई फील वर्गो इतनी अच्छी एनर्जी आई है कि कहीं ना कहीं कोई न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है. करियर में हम ग्रोथ, करियर में हम इम्प्रूवमेंट, हम सुधार देख रहे हैं. तो आई फील अगर कुछ आ रहा है सामने से, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नई एनर्जी, कोई नया अपॉर्चुनिटी, प्लीज उसे लीजिए. इतना ज्यादा कंटेम्पलेट करने में ना आप जो सही समय होता है, जो डिवाइन टाइम होता है, वो गवा देते हो. सो आई फील आपको पता है कि आपको क्या करना है, बट आप बहुत डर रहे हो, आप लोगों की बातों में बहुत ज्यादा आ रहे हो. इस वजह से आप अपने हाथ से अपना नुकसान कर सकते हो. सो आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू चैनलाइज योर एनर्जीज वेल. ये हफ्ते प्लीज समझिए कि आपको करना है या नहीं करना है. आपकी एनर्जीज इंपॉर्टेंट है, बट आप इन्फ्लुएंस हो के अगर कोई काम कर रहे हो तो वो आपका पूरा नष्ट हो सकता है, पूरा रुइन हो सकता है, बनी बनाई चीज खराब हो सकती है. सो आई फील थोड़ा सा स्लो जाओगे चलेगा, पर मेक श्योर कीजिए कि आप अपनी ही सुन रहे हैं और दूसरों की नहीं. उसके बाद यूनिवर्स ये चाहता है कि आप अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखो. यार देयर सो मच इनसाइड यू, जैसे मैं बोल रही हूँ यार बहुत कुछ चल रहा है, बट आप उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो. यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू क्रिएटिवली स्टार्ट एक्सप्रेसिंग. मुझे ऐसा लगता है बस एक बुक और पेन लो, जर्नल करो, अपनी सारी एनर्जीज बाहर आने दो. आपने इतना स्टॉप क्यों किया? अगर आप लिख नहीं सकते हो, आप बोलते आई एम नॉट दैट पर्सन टू लाइक ऑलवेज हैव अ बुक एंड पेन अराउंड. जस्ट टेक योर फोन एंड स्टार्ट वॉइस रिकॉर्डिंग. आप क्या फील कर रहे हो? लेट्स से you're feeling good, you're feeling nice, you're feeling burdened, sad, whatever it is, let it come out. It's going to make you feel so focused and so aligned to everything that you're going to do in your life altogether. So yeah, this is all we have for you, Virgo. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. And we move to Libra. Libra, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this particular week looks like for you. Libra, ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है थोड़ा सा समय आ गया हाथ बंद करने का. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस? आपके हाथ इतने खुले हैं कि पैसा आता है चले जाता है. आपको लोग मतलब खड़े हुए हैं एक तरीके से चीट करने के लिए, हैंटने के लिए, कहीं ना कहीं रॉन्ग मोटिव से सारा आपसे निकाल के ले जाने के लिए. आई फील थोड़ा सा अपना पैसा प्रोटेक्ट कीजिए. अपने जो 1 या 2 बंदे हैं जिसपे आप बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो, जो आपके क्लोज रिलेशन है, आई फील उनसे थोड़ी सी हेल्प लो टू कीप योर मनी प्रोटेक्टेड. तो थोड़ा सा सेविंग्स में प्लीज फोकस कीजिए, बिकॉज इट जस्ट फील्स मनी इज लुकिंग डिफिकल्ट. तो ये डिफिकल्ट वाली एनर्जी नहीं होनी चाहिए. मनी के साथ बहुत प्यार का रिश्ता होना चाहिए, अच्छा रिलेशन होना चाहिए. इट जस्ट फील्स वेरी एंशियस. आपके पास आता है चले जाता है. कई बार ऐसे भी दिन होते हैं कि आपके पास कुछ नहीं होता है. सो यू नीड टू स्टार्ट प्रोटेक्टिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ योर मनी, बिकॉज लाइफ इज गो रनिंग फॉर यू. ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आ रहा है. देयर इज ऑलवेज अ फ्लो दैट आई सी इन योर एनर्जीज, बट समहाउ द मैनेजमेंट, समहाउ
दैट होल्ड विथ मनी इज नॉट देयर। तो ये कार्ड ये भी बोल रहा है कि कहीं ना कहीं ये हफ्ते कोई आपका काम भी बन सकता है, तो थोड़ा सा काम में भी फोकस करें, थोड़ी सी एनर्जीज को अच्छे से चैनलाइज कीजिए, अच्छे से प्लानिंग कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्ड फॉर प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग करते हो, आपका काम देखो कैसे सब बहुत अच्छे से होता है। उसके बाद ऑनरिंग योर ट्रू फीलिंग्स, जो भी आप फील करते हो एटलीस्ट थोड़ा सा एक्सेप्ट करो, थोड़ा सा किसी को बताओ। देखिए आपकी एनर्जीज, आपकी लाइफ कैसे ब्यूटीफुली शेप होती है, कैसे ब्यूटीफुली चेंज होती है। यू नो, ऑलवेज होल्डिंग बैक टू थिंग्स कुड रियली लीड यू टू अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंड दिस फ्रस्ट्रेशन कैन रियली बैकफायर यू। सो आई फील इट्स इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा उसे एक्नॉलेज कीजिए, शेयर कीजिए अपने आप से। मतलब मैं बोल रही हूँ शेयर भी नहीं, एक्सेप्ट कीजिए, ऑनर कीजिए, ऑनर योर सेल्फ। Simple, right? So yeah, Libra, this is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you're looking forward to. Have a great week ahead. We move to Scorpio. Scorpio, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this particular week looks like for you, Scorpio. Scorpio, it looks like a week of action. Please start taking actions to whatever you've been sitting on for a very long time. मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सोचा ये टाइम है यार एक्शन लेने का, आगे बढ़ने का। कोई रिलेशन अगर छूट गया ना पीछे, तो उसको कंप्लीटली छोड़ के आगे बढ़ो। यू नो, आप अभी भी उधर अपनी जान लगा रहे हो, अभी भी उधर अपनी एफर्ट लगा रहे हो, उधर अपनी एनर्जी लगा रहे हो, कॉन्स्टेंटली वही चीज के बारे में सोच रहे हो जो गया। आई फील इट्स सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन मटीरियलिस्टिक थिंग्स। यार ये हफ्ता आपके लिए अच्छा है, कुछ लग्जरी खरीद सकते हो आप, कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पैसा कहीं लगा सकते हो जो जिसका हम लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी देख रहे हैं। लग्जरी भी अगर आ रही है आपके पास, वो लग्जरी बहुत आपको हैप्पी फील करा रही है। सो यू हैव दैट मनी, यू हैव दैट पावर, यू हैव दैट अथॉरिटी। आई फील इट्स इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज, आई फील इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ दिस एंड होल्ड एंड नो कि यार मेरे लिए क्या बना हुआ है। यू नो, आई फील इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज एंड कम टू दैट पॉइंट ऑफ यू नो जस्ट नोइंग योर सेल्फ अ लिटिल बेटर। सो आई फील आपके लिए ये भी अगेन ब्यूटीफुल कार्ड है जो बोल रहा है यार वेकेशन, इट्स टाइम टू टेक अ ब्रेक। जितना ज्यादा आपने एफर्ट लगाया है, जितना ज्यादा मेहनत करिए, जितना आज आप आए हो, जो भी मुकाम पर आप आए हो, यू हैव रियली पुट इन अ लॉट. सो आई फील इट्स ऑल्सो टाइम टू टेक अ लिटिल ब्रीदर, मे बी प्लान सम वीकेंड गेट अवे, सम बिगर हॉलीडेज इन द फ्यूचर. बट प्लान करो ये हफ्ते कुछ ना कुछ वेकेशन रिलेटेड, यू नो, ट्राई एंड वर्क अराउंड. इट इज गोइंग टू बी रियली रियली गुड and positive for you. So yeah, I hope this helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye. And we move to Sagittarius. Sagittarius, we are pulling out 2 tarot cards and 1 angel message for you. Sagittarius, देखते हैं इस हफ्ते यूनिवर्स, एंजल्स, टैरो आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. Sagittarius, just hold on, थोड़ा सा पेशेंस रखो यार. आप बहुत ज्यादा घाई में हो, रश में हो, इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हो. नो, डोंट डू दैट. थोड़ा सा स्लो डाउन करो. मैं ये भी बताऊंगी, अगर कुछ खरीदने जा रहे हो, कुछ बाय करने जा रहे हो, इम्पल्स बाय बिल्कुल नहीं करनी है. आई फील थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, थोड़ा सा सोचना है ये मेरी लाइफ में जरूरी है, इज इट वर्थ इट. बहुत ज्यादा इवेल्युएट करना है उसके प्रोज एंड कॉन्स. द मोमेंट यू इवेल्युएट इट्स प्रोज एंड कॉन्स, आई फील यू विल बी इन अ बेटर स्टेट टू मेक दैट चॉइस और डिसीजन फॉर दैट मैटर. इट लुक्स अ गुड एनर्जी, इट लुक्स अ गुड वाइब्रेशन, बट यू नीड टू होल्ड. मतलब पेशेंस रखना है. क्यों, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है यार गिव अप. यू नो, बहुत सारी चीजों को लेके आप गिव अप भी कर रहे हो. आई फील जो चैप्टर खत्म हो गया है, जो चैप्टर हमने क्लोज कर दिया, इट्स फाइन. यू डोंट नीड टू लाइक रिकंसिडर एंड लुक बैक, क्योंकि आपके अभी तक दिमाग में ना वो चीजें चल रही है. शुड आई लुक बैक, शुड आई रिकंसिडर? ट्रस्ट मी, इट डजंट रिक्वायर यू टू रिकंसिडर. इट्स डन एंड डस्टेड. नाउ इट्स टाइम टू मूव फॉरवर्ड विथ अ लिटिल पेशेंस मे बी. यस, angels are telling you your problem has already been resolved. Why are you struggling? Why are you like really bothering about so many things, so many situations in life? Things have got a lot better. So I really hope it helps. I really hope it brings you the light that you were looking forward to. Have a great week ahead. Now we move to Capricorn. Capricorn, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. देखते हैं इस हफ्ते टैरो, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं. It looks like a good week for you, Capricorn. Capricorn, this week is all about new beginnings. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज है जो आपने शुरू करी थी बट उसको अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाए. ये वीक से ना आप कुछ छूटी हुई चीज को वापस टच बेस करके उसको नर्चर कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो, उसको वापस इनिशिएट करने का, वापस रीस्टार्ट करने का
कोशिश कर रहे हो, एंड इट्स अ गुड एनर्जी. आपकी एंथुजियाज्म, आपकी वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है. आई वांट यू टू कीप अप टू दिस. आई डोंट वांट यू टू गिव अप एट दिस पॉइंट. योर वाइब्रेशंस, योर एनर्जीज लुक ब्यूटिफुल. तो मैं चाहती हूँ कि आप इसका बेस्ट यूज करें, बेस्ट एनर्जी को अप्लाई करें. ये भी बोल रहा है कहीं ना कहीं अगर आप फीमेल हो और बहुत समय से प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, ये वीक आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइन देखोगे. कहीं ना कहीं अपने डॉक्टर से सुनोगे कि थिंग्स हैव गॉट अ लॉट better. So there is some ray of hope that you can look up to, definitely, and I really hope you are looking and you're hearing that good news in your life very very soon. We move to this, ये बोल रहा है यार थोड़े से इमोशंस को छोड़ो. कहीं ना कहीं कोई छोटी सी बात आपके दिल में इतना ज्यादा अंदर घुस गई है ना, वो निकल नहीं पा रही है. मुझे ऐसे लग रहा है थोड़ा सा फॉरगिव एंड फॉरगेट ये हफ्ते का कॉन्सेप्ट बनाओ यार, अपने दिमाग में डालो ये चीज बार बार. What's done is done and I forgive. तो कितना जितना ज्यादा हो सके ना, ये हफ्ते आप affirmations बोलियो. I forgive myself, I forgive this person, I forgive this situation, thank you universe for helping me forgive. ऐसे तरीके के आप statements affirm कीजिए. See how it makes you feel amazing. उसके बाद जैसे मैंने बोला, ये सब आपको थोड़ा सा डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, यानी थोड़ा सा पॉज लीजिए. जो एनर्जी नहीं अच्छी लग रही है, जो एनर्जी बॉदर कर रही है, उससे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए. लेट्स से फॉर एग्जांपल, अगर आप फोन पे जा रहे हो, इंस्टाग्राम पे जा रहे हो, यूट्यूब पे जा रहे हो, सम एनर्जी इज रियली नॉट मेकिंग यू हैप्पी, और वो इंस्टाग्राम पे बार बार वही पर्सन की एनर्जीज या डिटेल्स या स्टोरीज या पोस्ट आ रहे हैं. Take a break from phone, take a break from Instagram for that matter. So do certain things for yourself to feel light, right? So yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. We move to Aquarius. Aquarius, I am pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this particular week looks like. एक्वेरियस, ये जो कार्ड आया ना आपके लिए, ये कार्ड ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं देयर इज अ सर्टेन न्यू बिगिनिंग दैट यू विल स्टार्ट सीइंग दिस पर्टिकुलर वीक. मतलब जो खत्म हो रहा था, नहीं हो रहा था, बहुत ड्रैग हो रहा था, कब होगा, दिस इज द टाइम, दिस इज अ वीक. वो चीज खत्म हो गई, इट्स डन एंड डस्टेड. आई फील इट इज न्यू बिगिनिंग. कहीं ना कहीं जो भी सिचुएशन भी हो सकती है जहां पर ना बहुत सॉरो, बहुत पेन, बहुत बोलते ना एक सैडनेस डील कर रहे थे, वो सैडनेस का भी हमें अंत दिख रहा है. वेरी गुड न्यूज, वेरी पॉजिटिव एनर्जी. तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस कीजिए एंड टेल गॉड दैट यू आर रेडी टू एंटर अ न्यू बिगनिंग, यू आर रेडी टू रिसीव लव, वट एवर योर एनर्जी इज. मुझे ऐसा लग रहा है देयर इज न्यू बिगनिंग राइट एट योर डोर. बट अभी भी क्योंकि आप इतने ज्यादा फियर्स में रिवॉल्व कर रहे हो ना, तो वो आ नहीं पा रहा आपके पास. थोड़ा सा अपनी डर, थोड़ा सा अपनी एंजाइटी को पीछे हटाएं और अपने आप को बताइए कि यू आर वर्दी ऑफ गुड थिंग्स इन लाइफ. आप ऐसे बोलो कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होता है, मेरे साथ ही बुरा होता है. ये बोल कर ना आपने अपनी एनर्जीज पूरी नेगेटिव बना दी है. एंड आई वॉन्ट यू टू क्लेंस, आई वॉन्ट यू टू रिलीज, बिकॉज लाइफ इज ब्यूटिफुल फॉर यू. आई फील थिंग्स हैव रियली गॉट बेटर फ्रॉम पास्ट टू टुडे. बहुत फर्क आया है चीजों में, पर आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, पर आप उसका शुक्राना नहीं कर रहे हो. आई फील इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू feel grateful about all that you are, all that you have as on today, right? Parenting and children, I feel spend more time, angels are telling you spend more time with your parents and children this particular week, ताकि उनकी वाइब्रेशंस, उनकी एनर्जीज आपको बेटर फील कराए, एंड इट इज ओनली एंड ओनली गुड फॉर यू. सो आई रियली होप इट हेल्प्स, ब्रिंग्स यू लाइट, पॉजिटिविटी, ऑल दैट यू वर लुकिंग फॉरवर्ड टू. हैव अ ग्रेट वीक अहेड. And we move to Pisces. Pisces, I'm pulling out 2 tarot cards and 1 angel message. Let's see how this particular week looks like. Pisces, honestly speaking, कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत अच्छा नहीं होने वाला है. चीजें नॉर्मल, चीजें सिंपल, चीजें जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी. बट ये है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप ना अपनी जो उम्मीदें हैं उसके होल्ड कीजिए, उसे ना जाने मत दीजिए, उसे ना लेट गो मत कीजिए. क्योंकि कोई चीज आपके लिए वर्कआउट नहीं कर पाई, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी वर्कआउट नहीं करेगा. तो आपकी एक एक्सपेक्टेशंस, जो होप्स है ना, मुझे ऐसा लग रहा है उस पर थोड़ा सा रिविजन करने का टाइम है, उस पर थोड़ा सा स्ट्रांगली पकड़ने का टाइम है, सो दैट यू सी ब्यूटी, सो दैट यू आर वर्किंग टूवर्ड्स डेवलपिंग ग्रेट एनर्जी एंड ग्रेट वाइब्रेशन फॉर योर ओन सेल्फ. इट जस्ट फील्स, हाँ थोड़ा सा थकान हो गई है, थोड़ा सा मन जैसे ना थक गया है, एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू एंड हाउ एंड कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं. बट आई फील ईज आउट, ईज आउट, ईज आउट. जितना आप इजीली लेंगे ना चीजें, उतनी ज्यादा आपके लिए स्मूथ जाएगी. इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं ये हफ्ते भगवान को. जस्ट टेल गॉड दैट यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ एंड यू आर एक्सेप्टिंग द सिचुएशन एज इट इज. अब जो एंजल मैसेज है, न्यू लोकेशन, एंजल्स आर टेलिंग यू there could be
definitely a shift, a change, a new energy, a new opportunity coming your way this particular week, तो जिससे कोई ना कोई change आएगा, जिससे आप शायद थोड़ा better भी feel करने लग जाओ. So you know what I'm saying? It is only going to make things better for you from here. What is gone is gone. Yeah, that is what we have for you. I really hope it helps, brings you light, positivity, all that you were looking forward to. Have a great week ahead. Goodbye.